फाइन. सो हाँ, पढ़िए अनन्या ये वाला पार्ट. Endocrine system of ductless glands. Endocrine system is made up of glands which do not have any ducts, that is ductless glands. So in this case, the product is known as hormones. Hormone means to excite. In case of endocrine glands, the hormones are released directly into the blood or lymph. The hormones always act as first messengers and they will bring about hormone action only in those cells or organs which have the hormone receptors. ठीक है, ये There are हमने two डिस्कस types of. किया आज. Yes, एक्चुअली sir. हार्मोन रिसेप्टर क्या है हमें एडा एडा पक्के ले चलो. हाँ बोलो बोलो आगे. There are two types of hormones on the basis of their water solubility, water soluble and fat soluble. Water soluble hormones can be easily transported by the blood or lymph, but they cannot enter into the cell due to lipid bilayer of the plasma membrane. So these hormones have plasma membrane bound hormone receptors. Fat तो ये soluble अंदर जा नहीं hormones सकते, तो इसलिए इनको बाहर रिसीव करना पड़ेगा. आगे. Fat soluble hormones cannot be transported by the blood or lymph as they are hydrophobic, so they have to be transported by transporter proteins. These hormones can easily enter into the cell due to lipid bilayer of the plasma membrane. So these hormones have their hormone receptors inside the cell. They may be in the cytoplasm or in the nucleus. ठीक है, मतलब जो अंदर है सेल के, तो वो आइदर साइटोप्लाज्म के अंदर होगा या जरूरत पड़ा तो न्यूक्लियस के अंदर भी हो सकता है. ठीक है. Yes, sir. चलिए, तो एज वी डिस्कस दैट द फर्स्ट ग्लैंड हमारा कौन है, दैट इज हाइपोथैलेमस. ओके, तो हाइपोथैलेमस जो है इट इज अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन एंड वो हमारे बॉडी का फर्स्ट ग्लैंड है. ठीक है. हाँ पढ़िए. Yes, sir. Hypothalamus, it is a part of the forebrain, so its origin is ectodermal. It is in ब्रेन क्या है, नर्वस सिस्टम जो है ectodermal. एक्टोडर्मल है, तो इसलिए ये भी Yes, sir. एक्टोडर्मल है. It is in very close association and relationship with anterior pituitary with the help of hypophyseal portal system, the circle of Willis. Some एक्चुअली उसको hormones सर्कल secrete ऑफ विलिस बोला जाता है. system को, portal system को. हाँ, बिकॉज वो एक सर्कल होगा ना, हाइपोथैलेमस Yes, से sir. आएगा पिट्यूटरी, पिट्यूटरी से जाएगा हाइपोथैलेमस. ओके, तो इसलिए एक घेरा है, इसलिए उस घेरे को सर्कल ऑफ विलिस बोला जाता है. हाँ आगे. Some hormones secreted by the paraventricular nuclei and supraoptic nuclei of the hypothalamus are stored in the posterior pituitary and released as posterior pituitary hormones. तो The नया. hypothalamus. हाँ, Yes, sir. the hypothalamic The hormones are known as RH are known as और releasing IH. hormones and ये हम IH. ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं बोला पढ़ लो तो आपका काम खत्म होगा, फिर चलेंगे आगे. हाँ. So they control the secretion of anterior and intermediate pituitary master endocrine gland. So hypothalamus is also known as the master of the endocrine gland. ठीक है, ये हम समझ गए. तो अब ये Yes, sir. आया आपका हाइपोथैलेमस. तो पहला हार्मोन क्या है, बोलो GnRH सपोज. तो दिस इज गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. ये है GHRH मतलब ग्रोथ हार्मोन Growth hormone releasing hormone. ये है सोमेटोस्टैटिन या ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग. Growth hormone inhibiting hormone. तो ये स्टिमुलेट करेगा ग्रोथ, ये इनहिबिट करेगा ग्रोथ के रिलीज Inhibit को. करेगा. ठीक है. ये है TSHRH, तो उसका एक और नाम है TRH. ठीक है, तो TSHRH का एक और नाम होता है TRH. एंड वो क्या करेगा, वो स्टिमुलेट करेगा पिट्यूटरी को, क्या कि आप TSH बनाओ. अंडरस्टूड. एंड ध्यान है कि नहीं, अगर आपको सेल्स याद है तो गोनाडोट ये क्या है, गोनाडोट्रोप्स. ठीक है, इसका नाम ये क्या है, सोमैटोट्रोप्स. ठीक है, ये क्या है, थायरोट्रोप्स. ये क्या है, बोलो. ये है लैक्टो
Fine. So they are what? Lactotropes. लैक्टोट्रोप्स। फिर ये क्या है? प्रोलैक्टिन जो है वो लैक्टोट्रोप्स है। एंड लास्ट वाला है क्या? कॉर्टिकोट्रोप्स। So these are the 5 cells of anterior pituitary. ठीक है, तो इसलिए गोनाडोट्रोप्स आपका जीएनआरएच रिलीज, जीएनआरएच मैंने एफएसएच आरएच एफएसएच एलएच आपका आईसीसी करेगा। फिर सोमैटोट्रोप्स क्या करेंगे? वो जीएच रिलीज करेंगे। जीएच रिलीज करेगा। थायरोट्रोप्स क्या करेंगे? वो थायरॉक्सिन रिलीज करेंगे। लैक्टोट्रोप्स क्या करेंगे? आपका प्रोलैक्टिन रिलीज करेंगे, है कि नहीं? एंड आपका कॉर्टिकोट्रोप्स जो है वो एसीटीएच रिलीज करेगा। तो ये हमारे 5 टाइप ऑफ सेल्स हैं किसके? पिट्यूटरी के। तो ये उसी का एक पिक्टोरियल डायग्राम है, आप देख सकते हो। तो ये आपको जब मैं भेजूंगा तो आप देख पाओगे ये, ठीक है। तो ये उसका पिक्टोरियल डायग्राम है, ठीक है। हाँ चलिए, तो अब ये जो डायग्राम है ये वो हम देख रहे हैं। तो ये लोकेशन है, तो ये जो ऊपर वाला है ये हाइपोथैलेमस है। ओके, इसमें हम लोग थोड़ा मार्क कर देते हैं, इससे नहीं, इससे करेंगे। ओके, सो ये आप बहुत बड़ा हो गया। तो ये क्या है? सो दिस इज हाइपोथैलेमस एंड ये क्या है? दिस इज पिट्यूटरी, ठीक है। तो ये उसका कंसेप्ट है। एंड यहाँ आप देख रहे हो हाइपोथैलेमस में ये अलग अलग, उसमें 10 से 12 न्यूक्लियाई होंगे। तो ये हमने देखा क्या? सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियाई क्या रिलीज करेगा? बोलो, एडीएच। पैरावेंट्रिकल न्यूक्लियाई क्या रिलीज करेगा? आपका ऑक्सीटोसिन। ये जाके कहाँ स्टोर हो रहा है? देखो, इन पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो इसलिए ये दोनों फॉस्फेट हार्मोन बन के आगे जाएंगे। ये देख रहे हो? तो दिस इज द सर्कल ऑफ विलिस, ठीक है। तो इसी को हम लोग हाइपोफाइजल पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। एंड ये ग्लैंड है एंटेरियर पिट्यूटरी। एंड ये एक बोनी कप लाइक स्ट्रक्चर में रहता है, इसको हम कहते हैं सेला टर्सिका, जो कि स्फेनॉइड बोन का एक पार्ट है, ठीक है। तो इट इज अ पार्ट ऑफ स्फेनॉइड बोन। तो जब आप जेजेस का बोन वाला नोट देखेंगे तो सब और अच्छे से दिखेगा उसका लोकेशन, ठीक है। नाउ ये आपका हो गया सेला टर्सिका, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलिए, तो अब इसके अंदर ये देख रहे हो छोटे छोटे जो सेल्स हैं, ये आपके एंडोक्राइनोसाइट्स हैं, जो कि 5 तरह के होते हैं। क्लियर? एनीथिंग अंडरस्टूड और नॉट? तो देख रहे हो, तो ये हाइपोथैलेमस है, ये हाइपोफाइसिस है। एंड ये जो कनेक्टिंग है इसको पिट्यूटरी स्टॉक बोलते हैं या इन्फंडिब्यूलम। जैसे लॉलीपॉप का डंडा नहीं होता है, तो अगर पिट्यूटरी लॉलीपॉप है तो इन्फंडिब्यूलम उसका डंडा है। क्लियर? यस सर। तो ये उसका फिगर है। अब यहाँ डिस्कस किया जाए उसका फंक्शंस। चलिए, चलिए तो आप इसका फुल फॉर्म कौन बता पाएगा? तो वो पढ़ेगा, सपोज पहला हार्मोन सौरदीप पढ़ेगा। ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। हाँ, तो एसटीएच का फुल फॉर्म हमने क्या डिस्कस किया था? बोलो। सोमैटोट्रोपिक हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ओके, या सोमैटोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। तो ये किसको स्टिमुलेट करेगा? सोमैटोट्रोप को स्टिमुलेट करेगा। तो क्या रिलीज होगा? जीएच, एसटीएच और सोमैटोट्रोपिन। नहीं, और है, ये सब और है, ये सिनोनिम्स हैं, ठीक है। यस। चलिए, तो सेकंड क्या करेगा? बोलो सौरदीप। ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन। हाँ, तो ये inhibits the somatotropes to secrete growth hormone और somatotropin। हाँ, मतलब ये जीएच रिलीज को बंद कर देगा, ठीक है। तो इस तरह का रेगुलेशन को हम लोग क्या कहते हैं? आरएच आईएच रेगुलेशन। चाहिए तो आरएच आएगा, नहीं चाहिए तो क्या? आपका आईएच आएगा। तो आरएच स्टिमुलेट करेगा, आईएच बंद करेगा।
नाउ बहुत सारे बुक में जीएच को स्टोमेटोस्टैटिन लिखा होता है। ओके, ये ध्यान रखना। ओके, चलिए आगे, क्योंकि इसमें एक कंट्रोवर्सी है जब आप आगे जाएंगे। ओके, हाँ, prolactin releasing hormone, luteinizing लुटियोट्रोपिक luteotropic लुटियोट्रोपिक हार्मोन। हाँ, Releasing उसके बाद मैमोट्रोपिक हार्मोन, hemotropic उसके बाद hormone. लुटियोट्रोपिन, मैमोट्रोपिन। ठीक है, ट्रॉफिक हार्मोन को Yes. ट्रोपिन शॉर्टकट में बोला जाता है। Hmm. डैश ट्रॉपिक हार्मोन को आप डैश ट्रोपिन बोल सकते हो। ओके, हाँ, तो ये क्या करेगा? Stimulates the lactotrophs to release प्रोलैक्टिन। हाँ, यूटोट्रोपिक हार्मोन। luteotropic hormone and amniotropic hormone. यस, पीआरएल का एक और नाम क्या है? प्रोलैक्टिन। ठीक है, Prolactin. अब चलो तुम्हारे लिए मैं लिख देता हूँ, लुटियो ट्रॉफिक हार्मोन। ओके, तो ये आपका हो गया लुटियोट्रोपिक हार्मोन। ये हो जाएगा क्या? लुटियोट्रोपिन। ओके, ट्रोपिन। ये हो जाएगा क्या? मैमोट्रोपिक हार्मोन। ओके, सो इसलिए मैमोट्रोपिक हार्मोन को मामा माने ब्रेस्ट, ओके, मम्मी माने जिसके पास ब्रेस्ट होता है, तो इसलिए ऐसे उसका नाम पड़ा, मैमोट्रोपिन। Amniotropic. चलिए, तो आप उसी तरह से नीचे क्या हो जाएगा? डोपामिन। तो डोपामिन इज आल्सो नोन एज व्हाट? इनहिबिटिंग हार्मोन। Inhibiting hormone. हाँ, A thyroid stimulating release hormone, releasing hormone, a हाँ, thyroid मैसेज releasing है। hormone. हाँ, These are the smallest hormones with only 3 amino acid these residues. are नहीं idiot, this Sorry, is, this. क्योंकि ये सिनोनिम है। Synonym. ऐसे तेरा नाम डैडी मम्मी ने क्या दिया? सौरदीप। निकनेम सौरदीप। क्या है? Raj, राज। जेजेस क्या बुलाता है? सुकड़ा। Dada. दादा या सुकड़ा। तो इसलिए ये सब जो नाम है ये आप ही के हैं, इसलिए दुख करने का कोई जरूरत नहीं है। They're all your names. Yes, समझ आया? हाँ, चलिए। Thyrotropes. This stimulates the thyrotropes to release thyroid stimulating hormone or thyrotropin. करेक्ट। Adrenocorticotropic hormone releasing hormone. ये हमने इवन बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा था कि टीआरएच जो है वो ट्राइपेप्टाइड है। ओके, so it's one of the smallest hormones. हाँ, आगे। These are called corticotropes, which stimulates the corticotropes to release the adrenocorticotropic. Then एक सेकेंड, इसको थोड़ा करेक्ट कर देते हैं, समझे ना? लेट अस करेक्ट इट। इसको हम यहाँ लिख देंगे क्या? स्मॉलेस्ट पेप्टाइड हार्मोन, नॉट ऑल हार्मोन, क्योंकि उससे छोटे हार्मोन्स हैं बट वो प्रोटीन नहीं है। ओके, तो ये स्मॉलेस्ट पेप्टाइड हार्मोन है एंड इसमें क्या होता है? हैज 3 अमीनो एसिड रेसिड्यू। ठीक है, मैं सुन दे लो। हाँ, चलो आगे। stimulates the corticotropes to release adrenocorticotropic hormone, corticotropin, or adrenocorticotropin. फिर gonadotropin releasing hormone, which is known as gonadotropes. 3 types: follicular stimulating hormone releasing hormone, which stimulates gonadotropes to release follicular stimulating hormone in both मेल एंड Second फीमेल। type. यस, माने एफएसएच Little- जो है वो दोनों मेल एंड फीमेल में मिलेगा। ओके, एफएसएच इज फाउंड इन बोथ। हाँ, luteinizing hormone releasing hormone, which stimulates the gonadotropes to release luteinizing hormone in females. ओनली फीमेल। यस, Females. With ICSH, Interstitial cell stimulating hormone. यस, इंटरस्टिशियल cells सेल स्टिमुलेटिंग stimulating hormone हार्मोन। releasing hormone. एक्चुअली Yes. क्या है, ह्यूमंस मेल में
इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडिग होता है, तो उसको जो स्टिमुलेट करेगा उसको हम लोग कहते हैं आईसीएसएच। बट अगर आपके बुक में ये नहीं है तो आप उसे एलएच ले सकते हैं। जैसे पुराने बुक्स में ये एलएच लिखा होगा। ओके, जिसने पुराने बुक से रेफरेंस लिया वो भी एलएच लिखेगा। नीट में अगर क्वेश्चन आया एंड एलएच ऑप्शन है, आईसीएसएच नहीं है, तो आप क्या करेंगे? एलएच मारेंगे। LH दोनों है तो आईसीएसएच मारेंगे। ICSH। ठीक है, चलिए। तो हम लोग को हर तरह का ऑप्शन देखना पड़ेगा ना। अब वी कैन, बेगर्स आर नॉट चूजर्स, तो अगर वो नहीं दिया है भैया हम क्या उससे लड़ लें? तो इसलिए हमको वही मारना पड़ेगा जो दिया है। ओके, चलिए आगे। फिर मेलानोट्रोपिन रिलीज नहीं, ये आपका इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी है, देख रहे हो ना? सो दिस इज टारगेट सेल इन द इंटरमीडिएट। इसको चलिए लाइन खाएंगे इधर। तो इन द इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी। आ नहीं रहा ना, फिर भी क्या करेंगे? इसका एक्चुअली ये सिलेक्ट नहीं होता ना, नहीं तो इसको अलग से कर सकते थे ऐसे, बट वो पूरा मूव कर जाता है। चलिए, तो जब कुछ हो नहीं रहा तो रहने दो। ठीक है, हाँ चलो। तो वो क्या कर रहा है देखो। तो इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी जनरली ह्यूमंस में हम लोग क्या मानते हैं उसे? वेस्टिजियल। ओके, तो जनरली वी ट्रीट इट एज वेस्टिजियल, बट स्टिल बहुत सारे बुक में दिया होता है, इसलिए हम लोग उसको कर लेते हैं। तो वहां एक सेल है जिसको हम लोग कहते हैं मेलानोट्रोप्स। ठीक है, तो MSH-RH क्या करेगा? उसको स्टिमुलेट करेगा मेलानोट्रोपिन रिलीज करने के लिए, या उसको हम MSH भी बोलते हैं। अंडरस्टूड? उसी तरह MSH-IH क्या करेगा? MSH के रिलीज को स्टॉप कर देगा। ठीक है, तो ये जो सारा चीज है, दिस इज विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट? एंटेरियर पिट्यूटरी एंड इंटरमीडिएट पिट्यूटरी। ओके, हाँ चलो आगे देखो। आज कौन पढ़ेगा? एक सेकंड देखते हैं, न्यू बच्चों को देंगे चांस। ओम प्रकाश महापात्र, आर यू देयर? Yes. हाँ पढ़ो आगे। Pituitary, hypophysis, cerebrum. सुनिए, सेरेब्री। एक्चुअली आपको मालूम है ये फोर ब्रेन में है, तो फोर ब्रेन इज पार्ट ऑफ सेरेब्रम। बट मिड ब्रेन में एक और चीज होता है, क्या? पिनियल ग्लैंड। ओके, तो अब वैसे तो फोर ब्रेन ऊपर, मिड ब्रेन नीचे होता है, बट सिंस पिट्यूटरी थोड़ा और नीचे की तरफ झुका है, तो पिनियल ग्लैंड उससे ऊपर आ जाता है। तो इसीलिए हम लोग पिट्यूटरी को हाइपोफाइसिस सेरेब्री बोलते हैं एंड पिनियल ग्लैंड को एपिफाइसिस सेरेब्री बोलते हैं। ठीक है, हाँ चलिए। It is safely kept in a cup-like structure of the sphenoid bone known as sella turcica. It is known as the master of the endocrine orchestra or the Yes. master endocrine अगर gland. सारे ग्लैंड को हम एक ऑर्केस्ट्रा बाटी बोले तो उनका हेड कौन है? पिट्यूटरी, एंटेरियर पिट्यूटरी। ठीक है, वो सारे ग्लैंड्स का बाप। यस। Pituitary has dual origin. It is also a part of the brain but made up of two मतलब different इसका glands. अलग अलग ओरिजिन है। ओके, हाँ। Anterior pituitary or adenohypophysis pars distalis. It originates from the Ratkes pouch and its origin. पाउच एक्चुअली क्या होता है? एक्टोडर्म एक है जो नर्वस सिस्टम बनाता है, एक एक्टोडर्म का हिस्सा है जो डाइजेस्टिव सिस्टम बनाता है। तो जो एक्टोडर्म डाइजेस्टिव सिस्टम बनाता है उसको रैथकेस पाउच बोला जाता है। अंडरस्टूड? चलिए, ये हमारा ओरिजिन है, मतलब ये आप अगले साल पढ़ेंगे 12th क्लास एम्ब्रियोलॉजी में, जेसीआरटी लेक्चर।
not NCERT lecture. Okay. हाँ चलिए. So its origin is digestive ectoderm. Hmm. It is in harmonious relationship with the hypothalamus via the hypophyseal portal system. Hmm. Its expression is controlled by the hypothalamus. So the hypothalamus is known as the master of the master endocrine gland. Hmm. It secretes tropic hormones or stimulating hormones, hormones which stimulate the other glands in the periphery to secrete their hormones and bring about hormones action. It is made up of 5 types of cells and hence secrete 5 types of hormone. Somatotropes. Somatotropes secrete GH or somatotropic hormone or somatotropin. Lactotropes secretes PRL or prolactin, MTH, mammotropic hormone, LTH, luteotropic hormone mammotropin and luteotropin. Thyrotropes secretes TSH or thyrotropin. Corticotropes secretes ACTH or adrenocorticotropin or corticotropin. Gonadotropes secretes gonadotropin, FSH, ICH and LH. समझ आया? Yes, sir. तो दिस पार्ट हम लोग सब डिस्कस कर चुके हैं. मैंने बोला बस दिखा दो आपको सारा कुछ. नाउ उसके बाद आ जाइए पोस्टीरियर पिट्यूटरी. सॉरी. Yes, sir. Posterior pituitary or neurohypophysis or pars nervosa. It originates from the neural ectoderm. वेरी सिंपल टू रिमेम्बर. देखो नर्वोसा, न्यूरो, नर्वस सिस्टम. समझ गए? नर्वोसा, न्यूरो, न्यूरल एक्टोडर्म. ठीक है. यहाँ है Yes, sir. एडेनोहाइपोफाइसिस, मतलब दूसरा एडिजाक्टिव स्पंज. चलो बोलो. Two of hypothalamic nuclei secrete hormones that are stored in the posterior pituitary and secreted as their hormone. These nuclei are supraoptic paraventricular nuclei. The hormones of the hypothalamic nuclei are secreted as post pituitary hormones. आप तो जानते हो वहां है. तो अगर वहां से आएगा तो लोग क्या बोलेंगे कि वो उधर का हार्मोन. ओके बेबी. हाँ Yes, sir. बोलो. That is paraventricular nuclei of hypothalamus secretes oxytocin hormone and stores in post pituitary. Second one is supraoptic nuclei of hypothalamus secretes ADH or vasopressin hormone and stores it in the post pituitary. चलिए तो ये उसका लोकेशन है. अगर आप ग्लैंड वाइज देखेंगे तो दिस इज द पोजीशन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड. ओके. ये आपको एमआरआई करके दिखाया जा रहा है. ये जो येलो पार्ट है ये हाइपोथैलेमस है. ये जो डीप पिंक है ये हाइपोफाइसिस है. एंड ये जो लाइट पिंक है ये इन्फंटिबुलम या पिट्यूटरी स्टॉक है. तो ये वो सेम चीज हम देखे हैं. ये एक और डायग्राम है. और क्या हम देखो यहाँ कितना सुंदर सेला टर्सिका बनाया गया है. डीप सेला टर्सिका. ओके. Yes, sir. चलिए. हाँ तो ये. हाँ बोलो बोलो असीमानंद. मैं कुछ नहीं बोल रहा, सारथी बोल रहा. ओके. हाँ चलो हो गया. अब ये वही डायग्राम है ऑलरेडी. तो अब एंटीरियर पिट्यूटरी का फंक्शन. हाँ चलिए बोलिए अनन्या. Anterior देखो pituitary ये मैंने आपको hormones. कितना ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया है. तो ये नोट लोगे तो आपको बिना कुछ पढ़े याद आ जाएगा. पर आप लोग तो ऐसे Yes, sir. लेने वाले नहीं. तो इसलिए और क्या मैं इतना गिड़गिड़ा रहा हूँ बट आप ले नहीं रहे हो आप लोग. हाँ तो आप यहाँ से शुरू करिए पहले ग्रोथ से. Growth hormone. हाँ तो एक्चुअली अगेन हम growth लोग यहाँ hormone. सेल्स लिख देंगे. तो यहाँ कौन सा सेल्स है? गोनाडोट्रोप्स. Gonadotropes. फाइन. उसके बाद इधर क्या लिख देंगे? Somatotropes. सोमैटोट्रोप्स. ओके. मैंने हम लोग को एक ही चीज बार बार बोलने से क्या है वो याद हो जाएगा. याद आ जाए. ओके.
तो वो आपका समझना जरूरी है। इफ यू टेल द से कहाँ चला गया है। ओके ओके, उसके बाद क्या आ जाएगा? ये Aerotrophs. है लैक्टो उसके बाद ये क्या है? Lactotrophs. ओके, लैक्टोट्रोप्स। एंड लास्ट वाला है क्या? Corticotrophs. कॉर्टिकोट्रोप्स। ओके, चलिए तो आप पढ़िए अनन्या। FSH से हाँ नहीं, हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से, GH से शुरू करो। हाँ ऐसा GH released from somatotrophs in liver and other cells secrete IGF-1 यस, and IGF many क्या organ. है? देख रहे हो लैंग्वेज, देखो आप लोग बोलते हो सर आप हम लोग को बहुत हायर लेवल पढ़ाते हो। अब देखो क्या लिखा है, IGF पता क्या है? तो इसीलिए आपको ये लैंग्वेज समझना पड़ेगा कि नहीं? Yes, तो sir. इसको कहते हैं इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। एक ग्रोथ फैक्टर नहीं आएगा तो ग्रोथ कैसे होगा? तो इसलिए इसको हम लोग कहते हैं इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, IGF। हाँ चलिए, तो इसलिए लीवर एंड अदर सेल्स में जब GH जाएगा वो क्या रिलीज करेगा? IGF-1, तो Insulin वो like ग्रोथ growth कराने में factor. मदद करेगा। नेक्स्ट, Many organs and tissues, protein synthesis, carbohydrate and lipid metabolism. बस, तो प्रोटीन सिंथेसिस करने से ग्रोथ होगा, मेटाबॉलिज्म करने से एनर्जी मिलेगा, वरना बिना एनर्जी का ग्रोथ थोड़ी Yes, होगा। sir. चलिए नेक्स्ट। TSH released from thyrotropes and हाँ thyroid secretes thyroxine and triiodothyronine. हाँ, उसके बाद Prolactin released from lactotropes in breast development and milk production in male may facilitate reproductive function. हाँ वो अलग बात है। हाँ चलो, SPH। ACTH released from corticotropes and adrenal cortex secretes cortisol. यस,